Assalamu alaikum students. Myself is Sir Irfan, and today's we will discuss the target paper of accounting, which is prepared according to reduced level for 2025. This paper is for first year commerce, session 2024-2025. First of all, I would like to explain you the target paper which I prepared. In the first question, I given definition of account and analyst, different steps involved in accounting cycle and describe. In the second question, I have selected accounting equation. Then the third question will be general journal entries. And the fourth one also general journal entries. Then the fifth one is general ledger and trial balance, followed by cash book. And I want to tell you that petty cash book is excluded from your reduced syllabus, so I did not give petty cash book in this session. Then question number 7 also cash book. Then we have a special journal. Question number 9 bank reconciliation statement, and the 10th one also bank reconciliation statement. Then we have long question answer session. We have financial statement. In financial statement, question number 1, I give you three things to prepare, three required. The first one is income statement, then balance sheet, and adjusted trial balance. And the second part of this session is another financial statement. In this financial statement, you have to attempt five parts. First one is the income statement, then balance sheet, adjusting entries, closing entries, and opening entries. So I think you know very well, due to reduced levels, the question of service related to services has been excluded from your paper. You have to prepare only financial statement related to trade, not services. So in this session, I also want to tell you that I give you every part of this question which will be asked. The first part is the income statement, then balance sheet, adjusted trial balance, covering your three topics. Then another income statement and balance sheet. And in this session, I also include adjusting, closing, and opening entries. So this paper will be very helpful. This will cover all of your required, which will be asked in your paper. So this is our target paper. Then we have to move the solution of this target paper. तो अब इसके लिए जो है ना मैं अपने टोन को चेंज कर दूंगा, क्योंकि ये है कि बाद स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको इंग्लिश में जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो हमने जो इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है वो अब हम आपको शो कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका जो है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है और उसके स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो ये तो थ्योरी से रिलेटेड है, ये तो आपके पास बुक होगी या कुछ होगा तो वहाँ से आपने इसको देख लिया होगा। देन अकाउंटिंग इक्वेशन जो है आपने पढ़ी होगी। अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। हम आपको राइट करके दिखा देते हैं। तो उसी अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करना है इसमें, और इसमें हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें इन्होंने दिया हुआ है द लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एन एसेट्स ऑफ 4 लाख एंड ओनर्स इक्विटी 1,80,000। यानी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एसेट्स हमें दिए हुए हैं 4 लाख, ओनर्स इक्विटी हमें दी हुई है 1,80,000, बट हमें जो है वो लाइबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने फॉलो किया है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। अब लाइबिलिटी जो है वो इधर हो गई है, इज इक्वल टू के इधर आ गई है, तो एसेट्स में से जो है हमने ओनर्स इक्विटी माइनस कर दी है, यानी 4 लाख माइनस 180, तो 2,20,000 जो है आपकी लाइबिलिटीज है।
सेकंड क्वेश्चन में जो है हमें फाइंड आउट करनी है एसेट्स की वैल्यू। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ हमने जो है इज इक्वल टू के इधर उधर लेके नहीं आए हैं, बस डायरेक्ट हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो ये हमारे एसेट्स की वैल्यू आ गई। देन थर्ड जो है उसमें हमें ओनर्स इक्विटी फाइंड आउट करनी है। तो उसमें जो है ओनर्स इक्विटी का फॉर्मूला होता है ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। जब भी आपको कैपिटल फाइंड आउट करना है ना, सेकंड ईयर में आप लोग करेंगे क्वेश्चंस, तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड आउट करनी होती है पार्टनरशिप फॉर्मेशन में, तो उसमें भी हम यही फॉलो करते हैं। तो हमने एसेट्स की वैल्यू लिख दी जो 2 लाख है, लाइबिलिटीज 70,000 है, तो माइनस किया तो 130,000 आ गया। देन उसके बाद नेक्स्ट वन जो है इसमें हमें रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन आपका ये आएगा, इसमें रेवेन्यू फाइंड आउट करने हैं, तो इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन तो है ही नहीं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, रेवेन्यू भी आ सकता है, लॉस भी मालूम करने के लिए आ सकता है। तो ये भी आपको जो है इसी के अंदर कवर अप करने होंगे। इसमें हमें रेवेन्यू फाइंड आउट करने हैं, रेवेन्यू का फॉर्मूला जो होता है एक्सपेंस माइनस इनकम। एक्सपेंसेस हमें इसमें 1,20,000 दिए हुए हैं, देन इनकम जो है वो 30,000 है, तो हमने माइनस किया तो 90,000 आंसर आ गया। तो ये तो हमारा जो था अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें हमें जनरल जनरल एंट्रीज देनी है। तो ये है कि मैंने दो दो तीन तीन इस वजह से रखे हैं इसमें कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाए। ये कैसे होगा आपको, फर्स्ट हमें दिया हुआ है ऑन March 1 2024 जुनेद खान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जुनेद खान ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 लाख है। एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाता है, ओनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री जो हमने बनाई है कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, सही है। देन उसके बाद सेकंड है ओपन अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ओपन किया है तो कैश डिक्रीज होगा और बैंक इंक्रीज हो जाएगा, दोनों एंड से जो है एसेट को डील कर रहे हैं, तो बैंक डेबिट हो जाएगा देन कैश क्रेडिट हो जाएगा। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मिस्टर शामिर 50,000 अंडर क्रेडिट टर्म्स 2/10 एंड अपॉन 30। अभी आप लोगों ने शायद देखा हो शायद ना देखा हो, ये क्रेडिट टर्म्स का मतलब होता है अगर ये 10 डेज में पेमेंट कर देंगे तो इनको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जो अपॉन के नीचे लिखा हुआ ना, इट मीन्स ये नंबर ऑफ डेज हैं और ये डिस्काउंट का रेट है। अब यहाँ पे ये लिखने का पर्पस क्या था कि यहाँ पे हमें पता नहीं था कि उसने कैश पे खरीदी है या क्रेडिट पे खरीदी है। तो आपने सुना होगा अगर किसी बंदे का नाम लिखा हो और कुछ ना मेंशन किया हो, तो हम समझ जाएंगे कि वो उधार पे खरीदा गया है या बेचा गया है। बट लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने क्रेडिट टर्म भी यूज़ कर दिया ना और ये भी बता दिया, तो इट मीन्स कि हमारी उधार पे खरीदी रही है मर्चेंडाइज, तो परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। देन पेड चेक टू शामिर इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। शामिर को पेमेंट करनी थी 50,000, हमने जो है 48,900 पेमेंट कर दी है, तो इट मीन्स हमें इसमें यहाँ डिस्काउंट हुआ है और हमने चेक इशू किया है, तो अकाउंट पेबल तो डेबिट हो जाएगा 50,000 से, और साथ साथ जो है बैंक और परचेज डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया है, यहाँ 1100 आएगा। अच्छा, देन उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री आ रही है वो आ रही है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू मिस्टर शहबाज। शहबाज को हमने मर्चेंडाइज सोल्ड की है, अकाउंट पे की है, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट इंक्रीज हुआ है और रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। देन उसके बाद कस्टमर जो था शहबाज, उसने हमें मर्चेंडाइज रिटर्न की है जो हमने उसको उधार पे माल बेचा था। तो इसमें जो है ना हम सेल्स वाली एंट्री को ही रिवर्स कर देते हैं। जब हमने सेल की एंट्री दी थी तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट था, तो यहाँ पे हमने क्या करा, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस इंक्लूड कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल को जो है वो क्रेडिट कर दिया है। तो ये वाला जो था हमारा पार्ट 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया, ये इसका सोल्यूशन है। जो सोल्यूशन जो है आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या इसकी जो है वो सॉल्व कॉपी जो है वो बट लेकिन पेड है वो मुझसे ले सकते हैं।
देन क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी हमने आपको जनरल जनरल एंट्रीज दी हैं। इन्वेस्टेड क्या है 720, एंड स्टोर इक्विपमेंट 8,60,000। यही दोनों चीज़ें जो हैं बिजनेस में आ रही हैं। एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है, ये दोनों अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा इनका सम करके। देन पेड शॉप रेंट फॉर द मंथ 80,000। यहाँ पे जो है ना, अभी रेंट पे कर रहा है 11th को। अब यहाँ आपको ये सोचना है कि ये पिछले महीने का था, नेक्स्ट मंथ का था, क्या था। यहाँ कुछ मेंशन तो नहीं है ना, हम समझ जाएंगे इसी मंथ का पे किया है। रेंट इसने पे करा है 80,000। अब हमें ये देखना है कि ये जो है इसको किस डेट पे कर रहा है। अगर ये 15 से पहले पे कर रहा है और इसी मंथ का है, तो हम उसको प्रीपेड में लिख देंगे। यहाँ देखें 11th को पे कर रहा है ना, तो हमने इसको प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दिया। देन 14th ऑफ अप्रैल को जो है वो कमीशन रिसीव हुआ है फॉर द सर्विस रेंडर्ड फॉर द लास्ट फोर्टनाइट। यानी उन्होंने कुछ सर्विसेज दी हैं, उसके अगेंस्ट में कैश रिसीव हुआ है, तो कैश डेबिट। और कमीशन इनकम या सर्विस इनकम, कमीशन इनकम रिसीव हुआ है तो कमीशन का अकाउंट यूज़ करेंगे। रिसीव कमीशन इन एडवांस फॉर द सेल ऑफ फ्लैट इन नाजमाबाद। अच्छा, कमीशन जो है इनको रिसीव हुआ है एडवांस में। ये थोड़ी डिफरेंट मैंने एंट्री इंक्लूड की है। और क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने एक फ्लैट बेचा था। हमें ये नहीं देखना फ्लैट बेचा तो फ्लैट को क्रेडिट कर दें, ये कर दें। हमें जो रिसीव हुआ है ना वो कमीशन रिसीव हुआ है, बट लेकिन वो जो है वो एडवांस में है। तो हम क्या करेंगे, उसमें कैश को डेबिट करके कमीशन अगर इनकम होता तो इनकम को कर देते, बट ये एडवांस में रिसीव हुआ है तो हम अनअर्न कमीशन का अकाउंट यूज़ करेंगे। दैन सैलरीज फॉर द मंथ 20,000। तो सैलरीज एक्सपेंड डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये वाला जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था। देन हमने जो है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया है, जिसमें हमने डायरेक्ट आपको टी अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहले बिजनेस उसने March 1 को स्टार्ट किया था 2024 को। कैश इन्वेस्टमेंट जो थी वो 50,000 थी, ऑफिस इक्विपमेंट भी 50,000 था। सही है। तो इसमें जो है आपको डायरेक्ट लेजर बनाना है। अब डायरेक्ट लेजर के लिए बाद स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कैसे बनेगा, कुछ इतना वो नहीं है। आप अपने माइंड में जो है ना वो एंट्री सबसे पहले ड्रॉ कर लें। आपने देखा ये कैश और ऑफिस इक्विपमेंट, इन दोनों को डेबिट करना था और कैपिटल को क्रेडिट करना था। तो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले कैश का टी अकाउंट खोल दिया है। थोड़ी सी स्पेस देके, थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि कैश के अकाउंट में ज़्यादा एंट्रीज होती हैं। देन ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट खोल दिया है, और फिर कैपिटल का। यहाँ हमने पोस्टिंग कर दी है, कैश डेबिट था, ऑफिस इक्विपमेंट भी डेबिट था, और कैपिटल क्रेडिट था। तो ये हमने तीनों की पोस्टिंग कर दी है। देन परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 25,000 एंड ऑन अकाउंट 15,000। तो कैश का तो अकाउंट खुला हुआ है, हमें एक परचेजेस और अकाउंट्स पेबल का अकाउंट न्यू ओपन करना है। हमने यहाँ परचेजेस का अकाउंट ओपन किया। टोटल जो परचेजेस थी वो थी 40,000, जो हमने लिख दी यहाँ पे। देन कैश को हमने यहीं पोस्ट कर दिया है, और न्यू अकाउंट हमने यहाँ ओपन कर दिया है अकाउंट्स पेबल का, जो ये रहा। देन परचेज ऑफिस सप्लाईज। अब न्यू अकाउंट हमें यहाँ ऑफिस सप्लाईज का ओपन किया है, यहाँ 2,000 लिख दिया है। देन कैश में जाके हमने क्रेडिट साइड पे भी 2,000 पोस्ट कर दिया। देन परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट। फर्नीचर को हमने डेबिट करके अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर दिया है। अकाउंट्स पेबल का एक ही अकाउंट खोलेंगे, उसी में हर एंट्री को पोस्ट करेंगे। बाकी फीचर जो है वो अलग अलग खुलवाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। एक ही अकाउंट आपको ओपन करना है। देन इसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट एंट्री थी सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। यहाँ कैश डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ कैश में हमने डेबिट में लिख दिया है। सेल्स का अकाउंट नहीं था हमारे पास, हमने यहाँ न्यू अकाउंट सेल्स का ओपन कर दिया। देन पेड टू सप्लायर। अकाउंट्स पेबल का जो अकाउंट खुला था वहीं हम जाएंगे, उसको वहाँ डेबिट कर देंगे। कैश को हम यहाँ से क्रेडिट कर देंगे 10,000 के हिसाब से। देन सोल मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। अगेन यहाँ पे कैश पे था, यहाँ अकाउंट पे है। तो हमने क्या करा, अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में जो है वो लिख दिया हमने 5,000। और सेल्स का हमने आई थिंक ऑलरेडी अकाउंट खोला हुआ है, वहाँ हमने
5000 क्रेडिट में लिख दिया। पेड रेंट फॉर द मंथ। अब यहाँ पे रेंट जो है ना मंथ के लास्ट में पे करा, तो यहाँ आपको रेंट एक्सपेंस का अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रीपेड रेंट लिखा था ना, यहाँ रेंट एक्सपेंस लिखेंगे। रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो कैश का अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है, यहाँ हमने कैश में लिख दिया। इसके बाद अब जो है ना इसकी फूटिंग और बैलेंसिंग होती है, तो ये भी हम आपको चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। इन सबको हमने ऐड किया और इन सबको हमने ऐड किया, तो इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 70,000। यहाँ हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये कुछ वैल्यू कम है, तो अब हम देखते हैं जिस साइड पे अमाउंट ज़्यादा होती है वो दोनों साइडों पर लिख देते हैं। यहाँ हमने ये लिख दिया 70,000। देन अब हमने देखा किस साइड पे वैल्यू कम पड़ रही है, तो इसी साइड पे कम पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है ना हमने डेबिट वाले लिखी हैं, तो यहाँ पे ये जितनी वैल्यू कम पड़ रही थी उसको हमने सीडी में लिख दिया। अच्छा, बैलेंस सीडी और बीडी में ये होता है कि जो सीडी एक तरफ होता है वही बीडी उसके अपोजिट साइड पे होता है। यहाँ बैलेंस सीडी जो है वो क्रेडिट साइड पे, तो बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे आ गया। देन इसी तरीके से यहाँ हमने ऑफिस इक्विपमेंट देखा, ये तो एक ही साइड पे था, दोनों जगहों पे 50,000 आ गया। यहाँ सीडी आ गया क्रेडिट में, बीडी आ गया डेबिट में। कैपिटल भी एक ही था, इसको इस तरीके से कर दिया है। परचेजेस भी ईजी है आप लोगों के लिए। अब अकाउंट्स पेबल में आप देखें, एक जगह जो है 20,000 है, एक जगह 10,000 है, तो 20,000 आपने दोनों जगहों पे लिख दिया। अब सीडी जो है ना वो डेबिट साइड पे कम पड़ रही है वैल्यू, जो हमने 10,000 लिख दी यही यहाँ बीटी हो गया। देन ऑफिस सप्लाईज भी एक ही वैल्यू है, इसमें भी इतनी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल्स भी एक है, और इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल की भी एक ही वैल्यू है, और रेंट एक्सपेंस भी एक है। तो ये जो था ना हमारा इसका सोल्यूशन था, डायरेक्ट बनाना कोई इतना हार्ड नहीं होता, आप लोग इसको देख के परेशान नहीं हो जाएगा, होता तो ये काफ़ी इजी है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 3 कॉलम कैश बुक है। ये पूरा हमारा क्वेश्चन है, और इसको अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले तो जो है मिस्टर जब्बार 3 कॉलम यूजेस 3 कॉलम कैश बुक, और मार्च फर्स्ट को कैश ऑन हैंड में जो है 50,000 है, और कैश एट बैंक में 90,000 है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपको एग्जाम में करनी कैसी है। आपको जो है वो बिल्कुल ही इसको एक साइड जो है वो एक पेज पे बनाना है। यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं, या चले मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। इतना जो इसका पोर्शन है वो एक पेज पे आएगा, और ये वाला साइड जो है वो दूसरे पेज पे आएगा। यानी आपको जो है ना आमने सामने इसको बनाना है। दो साइड होते हैं, ये रिसिप्ट साइड है, और ये वाला जो है ये पेमेंट साइड है। सही है, तो अब हम इसका सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमें इसमें एंट्री दी हुई है बैलेंस, इसके बाद सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। मर्चेंडाइज आपने सेल की है, तो आपके पास जो है वो कैश आ गया है। कैश को हमने सेल्स में लिख दिया, और रिसिप्ट साइड पे 36,000 लिख दिया। देन रिसीव अ चेक, और वो चेक जो है वो सेम डे डिपॉजिट हो गया है, तो हमने अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर यूनुस लिख के डायरेक्ट कैश एट बैंक में वैल्यू लिख दी है। देन उसके बाद पेड कैश टू मुनीर इन फुल सेटलमेंट, यानी मुनीर को हमने 22,700 का जो है वो पेमेंट की है, चेक दिया है या कैश दिया है इसको, और उसका अकाउंट जो था वो 23,000 का था। इट मीन्स इसको जो है वो 300 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दे दिया है। अकाउंट पेबल मुनीर में हमने यहाँ लिख दिया, और 3,300 डिस्काउंट में डाल दिया है। देन द चेक ऑफ यूनुस डिपॉजिटेड बट इट वाज डिसऑनर्ड। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक नई चीज़ आई है, ये पास पेपर में भी इतनी दफ़ा नहीं आई है, ये बहुत कम टाइम आई है, बट लेकिन मैंने इसमें डाल दी है। चेक जो हमने डिपॉजिट कराया था उसमें पैसे नहीं थे, वो डिसऑनर्ड हो गया, तो उसको हमें किस तरीके से डील करना है। यहाँ हमने जो है उसको पेमेंट साइड पे अकाउंट रिसीवेबल लिख के यहाँ बैंक में लिख दिया है। बट उसके बाद जो है हम इसको यहाँ स्टॉप कर देंगे। आप ये नहीं कि यहाँ से इसको निकाल के जो है वो रिसिप्ट साइड पे लेके आ जाए। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2,000 टू पे रेजिडेंशियल फ्लैट रेंट। रेजिडेंशियल मतलब होता है घर का, तो इसको जो है हम ड्राइंग के अकाउंट में डाल देंगे। तो यहाँ हमने जो है लिखा है ड्राइंग 2,000 यहाँ लिख दिए हैं।
देन उसके बाद ऑफिस रेंट के लिए भी जो है उसने 6,000 जो है वो पे किए, तो हमने ऑफिस रेंट लिख के यहाँ 6,000 लिख दिए। उसके बाद उसकी फुटिंग बैलेंसिंग है, यही हमने जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में किया था, कौन सी साइड पे बैलेंस ज़्यादा है। तो दोनों साइडों पे जो है रिसिप्ट साइड वाला है, तो हमने दोनों जगहों पे वही लिख दिया है। जितना कम पड़ रहा था उसको सीडी में लिख दिया, और यही उठ के यहाँ बीडी हो गया। ये वाला आपका जो था वो कैश बुक थी, जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 था फ्रॉम माई टारगेट पेपर। देन क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी हमने कैश बुक से दिया हुआ है। अब ये है कि दो दो दफ़ा इस वजह से दिए हैं कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। इसमें आपको जो है वो बैंक का बैलेंस जो है ओवरड्राफ्ट में दिया हुआ है। तो ओवरड्राफ्ट में जब आपको बैलेंस बीडी दिया होगा तो उसको आपको क्रेडिट साइड पे लिख देना है। ये इसके बैलेंसेस आ गए हैं। कैश का जो था, कैश ऑन हैंड 40,000 था और बैंक का 50,000 था। तो हमने जो है वो ये दोनों बैलेंसेस लिख दिए हैं यहाँ पे। देन उसके बाद जो है फर्स्ट एंट्री हमें इन्होंने दी हुई थी कैश सेल, तो वही हमने 60,000 लिख दिया है। और उसके बाद मिस्टर राफे जो थे कस्टमर थे, उन्होंने इतने अकाउंट हमारे अकाउंट में जमा करा दिए, तो वो हमने यहाँ मिस्टर राफे के नाम से लिख दिए। रिसिप्ट साइड पे पेड कैश टू सप्लायर, तो सप्लायर को पेमेंट हुई है, पेमेंट साइड पे अकाउंट पेपर लिख के 2,800 हमने यहाँ पोस्ट कर दिया। देन सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचा है मतीन को। कितने का हमने बेचा है? 24,000 का बेचा है। अब आपको मैं ज़रा स्टॉप करता हूँ और आपसे अगर अपने माइंड को आप रिकॉल करें और सोचें कि ये एंट्री रिकॉर्ड करनी भी है नहीं करनी। फर्नीचर उसने बेचा है, मतीन को बेचा है 24,000 का। अब देखें यहाँ पे जो है ना, ये नहीं लिखा हुआ कैश पे बेचा है या क्रेडिट पे बेचा है, बट एक बंदे का नाम लिखा हुआ है, तो इट मीन्स इसको हम क्रेडिट कंसीडर करेंगे। तो इसी वजह से हम इस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम जो है वो कैश बुक बना रहे हैं। कैश बुक में जो जो चीज़ें हैं, जो जो ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड हैं वही आती हैं। पेड सैलरीज बाय चेक, सैलरीज एक्सपेंस लिख दिया हमने। देन उसके बाद ड्रू फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग लिख दिया पेमेंट साइड पे। देन ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, ऑफिस यूज़ के लिए हमने कॉन्ट्रा बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि एक एंड से हमारे पास पैसे निकले हैं और हमारे हाथ में ही आ गए हैं। इसी तरीके से हमने इसका बैलेंस बीडी और सीडी निकाल दिया है। तो ये वाला जो है ना आपका कैश बुक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो दिया है वो स्पेशल जर्नल से रिलेटेड है। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ रिक्वायर्ड में कि कौन सा जर्नल बनाना है। यहाँ देख रहे हैं ना आप, सोल से रिलेटेड हमें ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, और हमें इन्होंने बोला है कि इससे कोई एप्रोप्रिएट जर्नल बनाना है। तो हमने सबसे पहले तो जो है वो सेल्स जर्नल बना दिया है। सबसे पहला जो था सोल्ड गुड्स टू हैदर एंड सन 9,000, ये हमने यहाँ लिख दिया है। देन उसके बाद सेकंड जो था हमारा 11 मार्च को था, स्माइल ब्रदर्स, वो हमने यहाँ पोस्ट कर दिया। ये दोनों क्रेडिट पे थी जब भी हमने इसको रिकॉर्ड किया है। देन परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टर्म फ्रॉम सत्तार, ये परचेज वाली जो है ना, हमने ये इसको अभी इग्नोर कर देंगे क्योंकि अभी हम सेल से रिलेटेड बना रहे हैं। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू हैदर सन्स, देन ये हमने फिर दोबारा हैदर का नाम आ गया है, इसको हमने मर्चेंडाइज सोल्ड किया। देन उसके बाद आ रहा है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। अब आप दोबारा अपने माइंड को पॉज करके सोचें कि इसको लिखें या ना लिखें। क्योंकि नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है, हमें क्रेडिट वाली लिखनी है इसमें। देन सोल्ड ऑल फर्नीचर, फर्नीचर बेचा है, ये मर्चेंडाइज नहीं है, तो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे। देन उसके बाद हम इन सब का सम कर देंगे और यहाँ लास्ट में एक एंट्री देते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। देन अब हमने एक एंट्री जो छोड़ दी थी वो हमने छोड़ी थी परचेज की, जो परचेज जर्नल से रिलेटेड थी, तो हमने यहाँ परचेज जर्नल बना दिया है। एक ही ट्रांजेक्शन थी, हमने पुट करके नीचे जो है हमने उसकी एंट्री दे दी है, परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट।
देन उसके अलावा कुछ हमारी ट्रांजेक्शन थी जो हमने लेफ्ट कर दी थी, वो थी 17 और 29। अब इन्होंने अप्रोप्रिएट लिखा था ना, तो अप्रोप्रिएट में आपको जो रह जाएंगी उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये हमने फिर उसके बाद ये जो बची हुई एंट्रीज थी वो दे दी थी। देन उसके बाद 70 का जो था वो लेजर की रिक्वायरमेंट थी, वो हमने बना दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जो है सबसे पहले बैलेंसेस दिए हुए थे वो हमने लिख दिए हैं। April 30th डिपॉजिटेड नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, तो ये वाला पॉइंट जो है वो बैंक स्टेटमेंट में ऐड होता है, 32,000 हो गया है। देन चेक इशूड नॉट प्रेजेंट, अनप्रेजेंट चेक जो है बैंक से लेस होता है, वो हमने कर दिया है। और कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कराए हैं तो ये अकाउंट रिसेबल के नाम से ऐड हो गया है। देन उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स से जितने भी टैक्सेस होते हैं ये सब लेस हो जाते हैं कैश बुक में से। देन उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जो है हमें मार्कअप मिल रहा है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो उसको हमने मार्कअप इनकम के नाम से लिख दिया है। लास्ट वन जो है वो डिसऑनर्ड चेक है जो हमने लेस कर दिया, तो ये दोनों बैलेंसेज हैं 25,000। देन उसके बाद इसका सेकंड रिक्वायर्ड जो है इसमें हमें एडजस्टिंग एंट्रीज की डिमांड की है, तो ये हमने उसकी एडजस्टिंग बना दी हैं। एडजस्टिंग में जो है हम सिर्फ बैंक कैश बुक के बैलेंस को देखते हैं, जो जो चीज़ें लेस हो रही होती हैं उनको डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, तो वही रूल हमने फॉलो किया है। जो जो चीज़ें ऐड हो रही होती हैं उनको जो है हम क्रेडिट कर देते हैं और बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और फिर उसमें बैंक अकाउंट में टोटल लिख देते हैं। सिंपल सी होती हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। आपको अगर बात जल्दी जल्दी में मैंने बोला है समझ में नहीं आई होगी तो आप इसको दोबारा रिवाइंड करके सुन सकते हैं कि किस तरीके से एडजस्टिंग एंट्रीज बनती हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन ये स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो 3 मार्क्स इसमें जो है ना आपके वेस्ट हो सकते हैं अगर आपने नहीं बनाई तो, रिक्वायर्ड में है और नहीं बनाई तो। देन नेक्स्ट हमारा एक और बैंक रिकन्सिलिएशन का हमने दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है आपके शॉर्ट का। देन उसके बाद हम लॉन्ग की तरफ मूव करेंगे। बैलेंसेस कैश बुक क्रेडिट दिया हुआ है और बैंक का बैलेंस जो है वो डेबिट है। इन दोनों का कैश बुक का अगर क्रेडिट हो तो वो नेगेटिव है, डेबिट हो तो वो पॉजिटिव है। इसी तरीके से बैंक जो है उसका वाइस वर्सा है, उसका अगर डेबिट है तो वो नेगेटिव है, क्रेडिट है तो वो पॉजिटिव है। अब यहाँ देखें कैश बुक का क्रेडिट में दिया हुआ है, बैंक का डेबिट में, इट मीन्स दोनों को जो है हमें नेगेटिव में लिखना है। देन फर्स्ट ट्रांजेक्शन लेट डिपॉजिट है उसको हमने ऐड कर दिया है। सेकंड डिसऑनर्ड चेक है, NSF है ना, नॉट सफिशिएंट फंड, इट मीन्स ये डिसऑनर्ड चेक है, कैश बुक में से लेस हो जाएगा। टोटल चेक 32,600 थे, 10,000 के जो है क्लियर्ड हो गए, तो अनक्लियर्ड चेक जो है हम ऐड कर देते हैं बैंक स्टेटमेंट में। देन उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर करे हैं फैज़ान ने, तो वो ऐड हो जाएगा कैश कैश बुक के अंदर। देन नेक्स्ट आ रहा है अनप्रेजेंटेड चेक जो लेस हो जाएगा। देन इशूड अ चेक 1,200 फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। अच्छा ये वाली जो है ना एरर से रिलेटेड है, 12,000 का हमने 1,200 का इशू किया था, बट उसने लिख दिया अकाउंटेंट ने हमारे कंपनी की बुक में 12,000 रुपये। इसका हम डिफरेंस निकालेंगे, 10,000 आएगा, 10,800 आई थिंक, हाँ। तो 10,800 जो है हम इसको विड्रॉन एरर के नाम से ऐड कर देंगे कैश बुक में। क्यों किया है? पैसे तो हमने कम दिए थे बट हमने ज़्यादा निकाल दिए थे अकाउंट से, उन पैसों को वापस लेके आना है ना जो गलती से हमने निकाल दिए थे, उसको निकालने के लिए जो है हमने उसको ऐड कर दिया। ये वाला जो पार्ट है अभी तक जो मैंने आपको बताया है ये हमारा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। वैसे तो एग्जाम में जो है ना वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो 6 आएंगे, जो आपको 6 और 7 आएंगे, जिसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं। बट लेकिन मैंने प्रैक्टिस के लिए जो है इस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा डाल दिए हैं, ताकि ये है कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। करे और उसके बाद जो है अब हम मूव करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसको सुनने से पहले ज़रा हमारी ये एडवर्टाइजमेंट देख लें कि हम जो है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कॉमर्स की ऑनलाइन और होम ट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बैच जो है हमारा फ्रेश बैच जो है वो 15 जुलाई से स्टार्ट होगा।
ये मेरी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है। जिसको क्लासेस लेनी हो वो मुझसे ले सकता है। क्योंकि ये है कि हम जो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं इसमें आपको ऑल लेक्चर्स तो प्रोवाइड नहीं करेंगे। कुछ रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही दे रहे हैं, और लाइव क्लासेस जो हैं वो उसके ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो आप लोग जो है लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे और फेस टू फेस मुझसे कम्युनिकेट करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। देन अब हमारा सेक्शन सी जो है इसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस वाले सेशन में जो है हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है, बैलेंस शीट और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट जो है मैंने दिया जो है ना आपको, ये सेल्स वाले से रिलेटेड है। तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हम सबसे पहले लिख देंगे इसमें सेल्स, सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो हमारे पास नेट सेल्स आ जाएगी। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो हमें ये दी हुई है 70,000। फिर इसमें हमने ऐड किया है परचेजेस। जो परचेजेस की वैल्यू हमें दी हुई है वो डेबिट साइड पे ये रही 2 लाख। अच्छा, इसको जो है ना मैं आपको अगर सही तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो इससे करता हूँ तो ये आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। गिव मी अ मिनट प्लीज। हाँ, इसको जो है ना आपको मैं इससे एक्सप्लेन करूँगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। कुछ जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, हम इसको चलें दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें देखना है नेट सेल्स निकालनी है ना, तो हम सेल्स की वैल्यू देखेंगे। सेल्स जो है हमें दी हुई है ये 2,50,000 है, जो हमने यहाँ इसको पुट कर दिया है। देन सेल्स डिस्काउंट, ये हमें डेबिट साइड पे दिया हुआ है 5,000, वो हमने लिख दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने के लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है जो हमने 70,000 है। ऐड परचेजेस हमने देखा जो 2 लाख थे, वो हमने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी हैं। देन परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट, ये हमें दोनों वैल्यूज मिलेंगी क्रेडिट साइड पे, जो हमने माइनस कर दी हैं। नेट परचेज इन ऑपरेशन आ गया, उसके बाद ऐड कैरेज कर दिया जो हमें डेबिट साइड पे मिलेगा, जो हमें यहाँ दिया हुआ ये रहा। तो नेट परचेज 190,000 आ गई, इसमें हमने ओपनिंग को प्लस किया तो मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ गया है। इसमें से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हमें लेस करनी है, जो हमें यहाँ गिवन है 50,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,10,000 आ गई है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, जो 3,50,000 है। देन अब हमें एक्सपेंसेस की तरफ मूव करना है, तो सबसे पहले हमें रेंट एक्सपेंस 6,000 है, बैड डेट्स 800 है, जो हमने एज इट इज़ यहाँ लिख दी है। देन अब बात आ जाती है सैलरीज। सैलरीज आउटस्टैंडिंग तो यहाँ 6,000 है, बट अब हमें देखना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस में कुछ है सैलरी से रिलेटेड। तो यहाँ आपको दिया हुआ है ये 40,000 और आउटस्टैंडिंग मतलब इतनी और पे करनी है, तो टोटल 46,000 जो है सैलरीज आ जाएंगी। देन डेप्रिसिएशन जो है आपको दिया हुआ है 4,000, जो हमने यहाँ लिख दिया है। इन सबको प्लस किया है तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है हमारे पास 58,600, जो हमने उसमें से माइनस किया है। अब यहाँ पे जो है ना हम लॉस पे पहुँच गए हैं, अनएडजस्टेड नेट लॉस है। 35 में से 56,800 माइनस किया तो आंसर नेगेटिव में आएगा। देन अब हमें देखना है कमीशन, इस क्वेश्चन में कुछ थी तो कमीशन आपको नज़र आ रहा है। कमीशन भी हो सकता है या इंटरेस्ट या रेंट भी हो सकता है। यहाँ इंटरेस्ट अर्नड है, जो 10,000 है उसको हमने यहाँ प्लस कर दिया है, तो टोटल एडजस्टेड नेट लॉस आ गया है 11,800। देन अब हमने उसकी बैलेंस शीट बनाई है। बैलेंस शीट में वही अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो होती है, एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज एसेट्स और लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी। सबसे पहले जो है हमने इसमें लिख दिया कैश जो 9,000 था, अकाउंट रिसेबल का बैलेंस 4,000 था, उसमें से बैड डेट्स हमने लेस कर दी। बैड डेट्स की जो वैल्यू है यहाँ हमें दी हुई है इन्होंने 800। तो अकाउंट रिसेबल में से 800 माइनस किया। देन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हमने लिख दी, जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में थी 50,000। देन नेक्स्ट आ रहा है ऑफिस सप्लाईज। अब ऑफिस सप्लाईज जो है हमें कितना दिया हुआ है
1200 दिया हुआ है, 1200, 12,000 है, तो हमने वो लिख दिया। देन उसके बाद हमें नेक्स्ट आ रहा है रेंट से रिलेटेड। रेंट देखें, यहाँ हमें था 30,000 प्रीपेड रेंट। तो उसमें से एक्सपायर्ड जो हुआ है ना वो हुआ 6,000। अब हमें देखना है बचा कितना है। एसेट्स मीन्स होता है जो चीज़ बच जाती है ना वो लिखते हैं, तो 24,000 हमने ये लिख दिया है। देन उसके बाद जो है फिक्स एसेट्स आ जाए, नॉन करंट एसेट्स। ऑफिस फर्नीचर हमें इन्होंने दिया हुआ है 1,20,000, और एक ऑफिस इक्विपमेंट दिया हुआ है। अब डेप्रिसिएशन जो लगा ना फर्नीचर पे लगा, तो पहले हमने ऑफिस इक्विपमेंट लिख दिया, उसके लास्ट कॉलम में वैल्यू लिख दी। देन ऑफिस फर्नीचर लिखा और उसमें से उसका डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। बट आप लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो 4,000 है, और आपने जो है सॉल्व में लिखा हुआ है 24,000। क्यों लिखा होगा ज़रा आप लोग सोचें इसको 5 सेकंड तक, और अपने माइंड में इसको सोचेंगे क्यों लिखा होगा। इस वजह से हमने लिखा है कि यहाँ हमें जो है वो अलाउंसेस की भी कुछ वैल्यू दी हुई है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी इसके ऊपर लगा हुआ है वो 20,000 है। देन 4,000 और हो गया है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है ना क्रेडिट साइड पे, ये और ये प्लस होके हम उसमें से माइनस करते हैं। तो टोटल हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो 24,000 प्लस हो गया, माइनस हो गया वो 1,20,000 में से 96,000 जो है वो इसकी वैल्यू आ गई है। और फिर हमने इन सबको ऐड किया है तो ये टोटल एसेट्स आ गए। देन लाइबिलिटीज में अगर हम मूव करें तो अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल एज इट इज आ गए। अनअर्न्ड रेंट इंटरेस्ट जो था आपका 20,000 था। मैं बोल रहा हूँ कि हमने वहाँ लिखा है इंटरेस्ट 10,000। अनअर्न्ड रेंट जो अनअर्न्ड इंटरेस्ट जो है हमने वहाँ 10,000 लिखा है। वो क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे जो था 20,000 था, जिसमें से अर्नड हो गया 10,000, अभी जो अनअर्न्ड है ना वो 10,000 ही रह जाएगा। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी जो थी वो हमारी थी 6,000। उसके साथ साथ जो था बैंक के साथ, यहाँ मैंने लोन मिस प्रिंट कर दिया, यहाँ लोन भी आएगा जो 242,000। देन सबको प्लस किया। देन कैपिटल एट स्टार्ट हमें यहाँ गिवन है 134,000, वो हमने लिख दिया। उसमें से नेट लॉस माइनस किया तो टोटल ओनर्स इक्विटी आ गई। इन दोनों को हमने मैच किया तो ये हमारा 4,61,000 आ रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट इसका रिक्वायर्ड है, उसमें हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया है। ये मैंने डिफरेंट वे में बनाया है, आपके टीचर ने इसको अलग भी बना सकते हैं, कोई इसमें फॉर्मेट का डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। हमने सबसे पहले जो है इसके कॉलम्स वगैरह ड्रॉ कर दिए हैं। देन उसके बाद जो है हमने इसकी एंट्रीज दे दी हैं, जो नीचे एडजस्टिंग एंट्रीज होती है ना डेटा फॉर एडजस्टमेंट में, उसमें से देख देख के हमने इसकी एंट्रीज दे दी हैं और फिर इसका टोटल कर दिया है। तो ये हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सॉल्यूशन था। इसके साथ साथ जो है हमारा एक मैराथन का एग्ज़ाम भी है। आप लोग अगर स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्टेड हों तो वो भी दें। साथ साथ जो है हम आपको और भी कुछ चीज़ अपनी प्रेजेंट करते हैं जो हमने प्रिपरेशन की है अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। तो इसमें जो है हमने कुछ ऑल इन वन एंट्रीज बनाई हैं जो अभी हम आपको शो कर देते हैं। शायद आपने नहीं देखी होंगी, नहीं ये वाली वीडियोस जो है शायद मैंने अपलोड नहीं की है अभी। एक सेकेंड। ये वाली जो है हमने ऑल क्वेश्चंस को जो है ना एक जगह इसको ऐड करके, यानी पहला आपका टॉपिक था जनरल जनरल एंट्रीज, तो इसमें आप लोग देखेंगे टोटल हमने जो है वो 60 to 70 एंट्रीज ऐड कर दी हैं जो जो पास पेपर में आ गई हैं। देन कैश बुक के साथ भी हमने यही किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस किस्म की फाइल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ सर इरफान के पास ही है। तो ये आप फाइनल में जब कर रहे होंगे ना, तो आपको अगर इश्यूज हो रहे होंगे, आपके मिक्सअप हो रहा होगा, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसी तरह स्पेशल जर्नल की हमने एंट्रीज कर दी हैं एक जगह, करेक्शन ऑफ एरर है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, और हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज है। तो ये सब जो है ना आप मुझसे ले सकते हैं, और इसके कुछ चार्जेस हैं, जिसको चाहिए वो मुझसे
कांटेक्ट करके ले सकता है। चलें अब वीडियो की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमने आपको इनकम स्टेटमेंट बोला था, बैलेंस शीट बोली थी, एडजस्टिंग और क्लोजिंग और ओपनिंग एंट्रीज। इनकम स्टेटमेंट एज यूजुअल जो भी हमने बनाया है बिल्कुल वैसे ही बनेगा। देन उसके बाद जो है बैलेंस शीट भी वैसी बनेगी। इसके बाद अब हम एडजस्टिंग एंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं, वो कैसे बनेंगी। पहली हमारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यू 1 लाख। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, फिक्स एंट्री है ये। सैलरीज पेबल है, रिलेटेड टू एक्रूड है, एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट। इस क्वेश्चन में हमें कमीशन भी दिया हुआ था, कमीशन एक्रूड हुआ है तो वो भी रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट हो जाएगा। देन ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड, ट्रायल बैलेंस हम देखेंगे। ऑफिस सप्लाई से रिलेटेड जो है हमें दिया हुआ है 5,000, तो ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो जाएगा, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 2,000 से। देन हमें जो नेक्स्ट है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है। प्रीपेड इंश्योरेंस जो था वो क्रेडिट हो जाएगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। अमाउंट जो है वो आ, कितनी आ जाएगी, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड की 8,000 आ जाएगी। डेप्रिसिएशन की फिक्स एंट्री है, इजी सी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। और पेपर में भी आप लोग ये ज़रूर अटैम्प्ट करेगा क्योंकि इसमें मार्क्स अच्छे आते हैं। लेट सपोज आपको इन्होंने 6 एंट्रीज दी थी, वैसे तो 5 आएंगी पेपर में, मैंने 6 दी हैं। तो अगर आप 6 में से 4 भी सही कर लेंगे 5 में से, तो आपको 8 मार्क्स तो मिल जाएंगे इसमें। और इसमें नरेशन आपको ज़रूर लिखनी है, वो आप अपने एंड से भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट रिक्वायर्ड है क्लोजिंग एंट्रीज। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में ये नहीं थी। सबसे पहले हमने रेवेन्यूज को क्लोज किया है। रेवेन्यू हमने क्रेडिट साइड पे देखा, तो सबसे पहले हमें जो रेवेन्यू इसमें नज़र आ रहा है वो सेल्स ही होगा क्योंकि ये ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। जी हाँ, सेल ये रहा, 750,000 है। देन परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस 5,000 आ गए। सारे रेवेन्यूज को क्लोज कर रहे हैं ना, तो उनको वैसे उनकी नेचर तो क्रेडिट होती है बट क्लोज करते हुए नेचर रिवर्स हो जाती है। देन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो है वो हमने लिख दी 1 लाख। देन कमीशन इनकम यहाँ हमें दिया हुआ है ये 4,000 और एक्रूड था 1,000, तो प्लस करने के बाद इसको 5,000 हमने यहाँ लिख दिया है। इन सबको ऐड करके एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को क्रेडिट कर दिया, इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया था। यहाँ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी लिख के इस कॉलम को अब हम ब्लैंक छोड़ देंगे, हाँ, दिस कॉलम। देन अब हमें सारे एक्सपेंसेस को क्लोज करना है। वो कैसे होंगे, सारे हम डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस देखेंगे। इसका फॉर्मेट है, आप अगर मेरे उसमें से देखेंगे ना स्लाइड्स में से, वहाँ मुझसे ले सकते हैं स्लाइड्स, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें जो है मैंने सबके फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। उससे जो है ना आप सॉर्ट आउट करके लिखेंगे कि सबसे पहले क्या आएगा, परचेज, फिर सेल्स रिटर्न। इस तरीके से आपको आसानी हो जाएगी। परचेजेस लिख दिया आपने, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, वो हमने लिख दिया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग जो हमें ट्रायल बैलेंस में दी होगी वो हमने लिख दी है। देन ट्रांसपोर्टेशन डेप्रिसिएशन, अभी सारे जो है ना वो एक्सपेंसेस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो सब अब हमने लिख दिए हैं। देन उसके बाद इन सब का सम करके हमने यहाँ डेबिट में लिख दिया। अब हमने देखा यहाँ पे 735 है, यहाँ 860 है। किस साइड पे वैल्यू कम पड़ रही है, ऑफ कोर्स डेबिट साइड पे कम पड़ी है, तो वहाँ हमने जो है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को डेबिट करके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अभी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इस चीज़ सजेस्ट कर रहा है कि कैपिटल इंक्रीज हुआ है। कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। कैपिटल इंक्रीज हुआ है तो इट मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर यही एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट में होता, कैपिटल डेबिट में होता, इट मीन्स हमें लॉस हुआ है। देन उसके बाद हमें जो है फर्दर देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में ड्राइंग है या नहीं है। ड्राइंग है तो उसको भी क्लोज करना है, ड्राइंग भी जो है वो कैपिटल से ही क्लोज होती है। वो कैसे हमने किया है, कैपिटल अकाउंट को जो है वो डेबिट करके ड्राइंग को क्रेडिट कर दिया। ड्राइंग की अमाउंट ये रही 50,000। तो ये हमारा जो था क्लोजिंग एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। देन अब हमने बनाई है इसमें ओपनिंग एंट्रीज। जब हमने क्लोजिंग के बाद जो है नेक्स्ट हमारा रिक्वायर्ड जो है वो ओपनिंग एंट्रीज से रिलेटेड है। कैश की अमाउंट आपको दी हुई है 1 लाख, वो हमने एज इट इज लिख दिया है। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो टू, कितनी इसमें वैल्यू है अकाउंट रिसीवेबल की,
ये रे 2 लाख, वो हमने एज इट इज लिख दिया है। देन ऑफिस सप्लाईज जो है ये 2000 लिखा है। अब यहाँ आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी कि 2000 लिखा भी है तो क्यों लिखा है। यहाँ आप देखें ऑफिस सप्लाईज का बैलेंस जो है वो 5000 था। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में ऑफिस सप्लाईज से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड है ना, तो वो हमने 2000 लिख दिया है। ओपनिंग में हमें वो चीज़ें लिखनी होती हैं जो जो चीज़ें हमारे पास लास्ट में बच जाती हैं वो लिखनी होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एसेट्स जो है ना उन सबको हमें लिखना है जो जो बच गए। देन उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस जो था इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 12000 था, जिसमें से एक्सपायर्ड हो गया 8000, बचा हुआ जो है 4000 आ गया। इसी तरीके से कमीशन रिसीवेबल ये भी एसेट था, एक्रूड जो था 1000 आ गया है। देन उसके बाद जो है हमने और देखे कोई एसेट्स, तो हमें फर्नीचर नज़र आया। फर्नीचर की यहाँ आपको प्राइस नज़र आ रही है 173,000, तो हमने वो लिख दिया। ऑफिस इक्विपमेंट एज यूजुअल हमारा 3 लाख था, वो हमने लिख दिया। यहाँ हम आपको शो कर देते हैं, ये रहा। देन नेक्स्ट जो हमने लिखा है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 1 लाख, जो आपको डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दी हुई है। यहाँ करने के बाद आपको स्टॉप पर जाना है। अब आपको जो है वो क्रेडिट बैलेंसेस लिखने हैं। सबसे पहले तो अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन जो था यहाँ हमारा था 25,000, और इधर हमें दिया हुआ था ये 5,000, तो ये 30,000 हो गया। देन लाइबिलिटीज़ की तरफ आ जाते हैं। अकाउंट्स पेबल जो था ये 1,70,000 था। देन सैलरीज पेबल जो था ये हमारा 5,000 था। इन सबको हमने प्लस किया, और इन सबको भी हमने प्लस किया। अब असल जो है ना वो कैपिटल की वैल्यू कैसे आएगी। कैपिटल की वैल्यू में जो है आपने सबसे पहले जो है वो, एक सेकंड मुझे जो है ना इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैपिटल की वैल्यू कैसे आई है। अच्छा, तो ये है कि अब हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि इसमें जो है वो कैपिटल की वैल्यू जो है वो हमने कैसे निकाली है। तो इसके लिए जो है हमें सबसे पहले जो है वो इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम सारे जो है वो डेबिट बैलेंसेस प्लस करके देखते हैं कि टोटल कितना आ रहा है। आप लोग भी चाहें तो खुद प्लस करके देखें, ताकि असल में हमारा पर्पस जो है ना आपको समझाना है सिर्फ, ये बताना नहीं है कि ये ऐसे ये हो गया ये हो गया, ये बताना है कि ये कैसे आंसर्स आए हैं। तो हमने क्या करा है इसमें, सारे एसेट्स को हमने प्लस किया है। उसके बाद इसमें से जो है हमने लाइबिलिटीज जो हमारे क्रेडिट बैलेंस है इससे उनको माइनस कर दिया है, तो ये कैपिटल की वैल्यू हमारे पास आ गई है। सही है, तो ये वाला जो आपका पोर्शन था ये हमने जो है आपको ओपनिंग एंट्रीज से रिलेटेड बता दिया है। इसको आप लोग खुद भी एक दफ़ा चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको टैली करने के लिए चेक किया था कि आंसर सही है या गलत है। क्या करा हमने, इन सबको पहले प्लस किया। 1 मिनट में आप लोगों को इसका आंसर भी बता देता हूँ। इन सबको हमने प्लस किया, तो यहाँ जो है ना हमारा बैलेंस आ रहा है 8,80,000। सही है, 8,80,000 है, उसमें से हमने माइनस कर दिया है 30,000।
-170 और -5, तो ये हमारा बैलेंस आ जाएगा 750,000। तो ये जो था आपका पूरा टारगेट पेपर है, और इसमें इसका सोल्यूशन भी है। और अगर ये आपको वीडियो में से भी देख लें, अगर समझ में नहीं आता या आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, वो भी आप मुझसे ले सकते हैं, बट उसके चार्जेस हैं कुछ 500 चार्जेस है, ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, तो वो आप लेके अपने पास सेव भी कर सकते हैं। साथ साथ जो है ये हमारा सेशन जो है ये स्टार्ट होगा 15 जुलाई से। तो जो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हों, या जो जो भी एडमिशन ले रहे हैं, कॉमर्स की फील्ड ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुझसे होम ट्यूशन भी ले सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। इस दफ़ा हमारा प्लान है कि हम आपको जो है वो लमसम फीस बता देंगे, ताकि ये है कि ज़्यादा बर्डन ना पड़े। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने होंगे उस हिसाब से फीस हम चार्ज करेंगे। तो ये है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कर सकते हैं, और साथ साथ जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करके, अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो व्हाट्सएप पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हैं मेरे पास, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और बाकी ये है कि ये वीडियो इंशाल्लाह जो है वो मिस्टर आफरीदी के चैनल पे भी जो है वो अपलोड होगी, तो वो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब फिर मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।